پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ انتخابات کرانا آئینی تقاضا ہے جو خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ انتخابات کے بعد آئندہ 5 سال کے لیے عوام کے منتخب نمائندے حکومت بنائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا ایک مضبوط موقف ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے دوران CNBC کو انٹرویو۔ معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح رہی ہے۔ اقتصادی اشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کا عمل ناگزیر ہے۔ سیاسی نظام میں پختگی اور معیشت کے استحکام سے پاکستان مضبوط جمہوریت کے طور پر ابھرے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم ٹریڈ ٹیک $1 ٹریلین پرومس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم سے بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈے کرو، کوکا کولا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیمز کوئنسی اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بل گیٹس کی بھی ملاقات۔ ملک بھر میں عام انتخاب کی تیاریاں، سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، آزاد اور سیاسی جماعتوں کی امیدواروں کی ڈور ٹو ڈور کیمپین اور جلد سے جلوس جاری۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا عمل شروع، 260 ملین بیلٹ پیپرز چھپوائے جا رہے ہیں۔ عام انتخابات میں ملک بھر سے مجموعی طور پر 18,059 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن۔ سابق جج جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف درخواست کا معاملہ۔ عدالت نے 8 جنوری کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ موقف سنے بغیر کسی کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ حکم نامہ۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، پاکستان کی جانب سے حملے کی شدید مذمت۔ ایرانی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی، حملے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئی تھیں۔ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، مخصوص سیاسی جماعت اپنے مذموم عزائم کی خاطر اس واقعے کو بنیاد بنا کر ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش میں ہمیشہ کی طرح مصروف۔ مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور انڈین اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان آرڈیننس فیکٹریز وہ کا دورہ، پیداواری صلاحیت سے متعلق بریفنگ، مختلف دفاعی مصنوعات کی ٹیسٹنگ اور ٹرائلز کے عمل کو دیکھا۔ ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا حصول ضروری ہے۔ آرمی چیف کی ادارے کے افسروں اور عملے کی کارکردگی کی تعریف۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ نہ رک سکا۔ جنوبی غزہ کے علاقوں خان یونس اور رفح میں اسرائیلی حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں نابلس کے قریب بلاتا پناہ گزین کیمپ کے قریب اسرائیلی میزائل حملے میں بھی 1 فلسطینی شہید۔ صہیونی ریاست کی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 24,285 ہو گئی، جبکہ 61,154 زخمی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ کی امداد کی فراہمی سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔ قطر کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے تحت غزہ کے مکینوں تک بلا تعطل امداد فراہم کی جائے گی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی دوائیں فراہم کی جائیں گی۔ غیر ملکی سرزمین پر اپنے شہریوں کو قتل کرنے والے ممالک میں بھارت بھی شامل۔ معروف امریکی جریدے فارن پالیسی نے مودی سرکار کی جانب سے بڑھتی ٹارگٹ کلنگ پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 18 جون کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اجرتی قاتلوں نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کر دیا تھا۔ امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرو پتونت سنگھ پنو کے قتل کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔
राम मंदिर मोदी की एक सियासी चाल, मारूफ जरीदे द गार्डियन ने मोदी के ओछी साजिशों का भांडा फोड़ दिया। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब की आड़ में मोदी अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहा है। इलेक्शन जीतने के लिए मोदी हिंदुस्तान की 80% हिंदू आवाम के मजहबी जज्बात का इस्तेमाल कर रहा है। द गार्डियन। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 616 अफगान शहरियों पर मुश्तमिल मजीद 68 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। पाकिस्तान छोड़कर वापस आने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,69,000 से ज्यादा हो गई। निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुतल्लिका इदारे स्मगलिंग के खात्मे के लिए पुरज़्म। मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 7 से 15 जनवरी के दौरान 10.88 मैट्रिक टन चीनी, वाफिर मिकदार में ईरानी तेल, खाद, सिगरेट और कपड़ा बरामद। बलूचिस्तान के इलाके नॉर्थ में जिरगे का इनेकाद। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ, कमिश्नर कोयटा, सिविल इंतजामिया, मकामी कबायली अमायदीन और इलाका मकीनों की शिरकत। इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल, सैलाब के बाद बहाली के मनसूबों और तरक्याती कामों पर बातचीत। इस सिरके से सिविल और मिलिट्री ताउन मजीद बढ़ेगा। शुरका। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज। ड्यूरेटन में तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 45 रन से हरा दिया। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कीवीज के 224 रन के जवाब में कौमी टीम 7 विकेटों पर 179 रन बना सकी। सेंचुरी स्कोर करने वाले फिलन एलन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। मस्कत में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में चीन को 2-0 से हरा दिया। कौमी टीम अपना तीसरा मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। इवेंट से 3 टीम्स पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई करेंगी। और सऊदी अरब के सहरा में डकार मोटर रैली। 9 मरतबा के वर्ल्ड रैली चैंपियन फ्रांस के सेबेस्टियन लोइब ने नवा मरहला अपने नाम कर लिया। लोइब की रवा सीजन की 4थी स्टेज फतह है। स्पेन के कार्लोस सीजन्स को मजमूई बढ़तरी में 4 मिनट की कमी वाक़ई। मोटरसाइकिल कैटेगरी में फ्रांस के आड्रियान वेलबर्बियन ने कामयाबी समेटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इंतखाबात कराना आइनी तकाजा है जो निगरान हुकूमत खुश उसलूबी से अंजाम देगी। पाकिस्तान के अवाम को इंतखाबात में वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आइंदा 5 साल के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत साजी कर सकें। डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के दौरान CNBC को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो आइनी तकाजे पूरे करना थे उन्हें पूरा कर दिया गया है। It's not about the current government that they have made a decision to deny that opportunity for the people of Pakistan to go into the elections and elect a mandated government for them. It was for all the legal and technical challenges which we were facing over there related to the electoral procedures and processes, and eventually we got over with them, and hopefully on the 8th of February, Pakistan's people would be having this choice and they would exercise it. It's a constitutional requirement and everyone in the country is committed towards that particular day, and Pakistan
and Pakistani people would have a chance to exercise their right to vote, and they would elect another government for themselves for next 5 years. वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत की बहाली हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। इक़्तिसादी इशारियों को सही समत में गामज़न करने के लिए इस्लाहात का अमल नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि सियासी निज़ाम में पुख्तगी और मईशत के इस्तेहकाम से पाकिस्तान मजबूत जमहूरियत के तौर पर उभरेगा। It was a top priority to bring the economic revival and focus on the growth and the rest of the economic indicators. For the next government, I think so. If there has to be a clear principle which would be guiding their, or which should be guiding their behavior, is to earn more and spend less. Until and unless there is spending or the expenditure side of the government which needs a thorough rationalization, and the revenue generation needs to be focused. We need to revamp our taxation system. It is badly redundant. We need to bring back the non-documented economy into documented economy and transform our state to a more viable economic entity. वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का एक मजबूत मौक़िफ़ है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम का 54वां सालाना इजलास जारी है। एतमाद की बहाली के मौजू पर होने वाले इजलास में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान, आलमी इदारों के नुमाइंदे, मुमताज़ कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के अरकान शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आलमी तनाज़ात के दौर से बचाव के मौजू पर आलमी इक़्तिसादी फोरम के गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में दुनिया के मारूफ पॉलिसी साज, सरमायाकार, कारोबारी रहनुमा और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म डेवोस में DP वर्ल्ड और JW इंटरनेशनल होल्डिंग के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के बानी क्लाउज और होल्डर श्वाब की जानिब से आलमी सियासी रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी तंजीमों, बैनुल अक़वामी कारोबारी काउंसिल के सरबराहान और शराकतदारों के एजाज़ में दिए गए अशाइये में भी शिरकत करेंगे। आलमी इक़्तिसादी फोरम का इजलास 19 जनवरी तक जारी रहेगा। इजलास का मकसद एतमाद के बुनियादी उसूलों, शफाफियत, हम आहंगी और जिम्मेदारी पर तबादला ख्याल करना है। आलमी सतह पर तनाज़ात के खात्मे के लिए बातचीत को भी एजेंडे में रखा गया है। शरह सूद की पॉलिसियों में तब्दीली और बढ़ते हुए कर्जों के चैलेंजेस से निपटने पर भी इजलास में गौर हो रहा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आलमी तनाज़ात की रोकथाम, आलमी निज़ाम पर एतमाद की बहाली और माशी बहरान के खात्मे की हिकमत अमली के मौज़ूआत पर मबनी तक़ारीब में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ट्रेड टेक के $1 ट्रिलियन के वादे के मौजू पर कलीदी खिताब भी करेंगे। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों, बिलख़ुसूस बच्चों और ख़वातीन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर तशवीश का इज़हार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमेरिकन कंपनी कारगिल के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ब्रायन साइक्स ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे में ताउन और पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करने में कारगिल के किरदार को सराहा। उन्होंने हुकूमत के कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम पर रोशनी डालते हुए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम और कलील अरसे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम और उनके मुस्बत नताइज पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम, बिलख़ुसूस खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत ज़राई शोबे में जिद्दत के इक़दाम पर भी गुफ्तगू की। ब्रायन साइक्स ने ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की जानिब से फ़राहम करदा सहूलतों की तारीफ़ की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से डेवोस स्विट्ज़रलैंड में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर मौसमियात के बारे में अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली के मकामी और आलमी असरात, बिलख़ुसूस इससे तरक्की पज़ीर ममालिक में पैदा होने वाली मुश्किलात के हवाले से गुफ्तगू हुई। दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी
फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद में हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा में कहा गया कि हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की ये खिलाफवर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, जिसकी संगीन नताइज निकल सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यह गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुताबिक चैनल्स के मौजूद होने के बावजूद हुआ है, जो कि और भी तशवीशनाक बात है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से तेहरान में ईरानी वजारत खारजा में मुतल्लिका सीनियर ओहदेदार को शदीद एहतजाज दर्ज कराया जा चुका है, जबकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में ईरानी नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा बुलाकर शदीद मजम्मत की गई है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। इस तरह की यकतरफा कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं हैं और ये दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। पाकिस्तान ईरान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की यह खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, जो संगीन नताइज का बायस बन सकती है। एक तरफा कार्रवाइयाँ दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। इस बात में किसी किस्म का कोई शक नहीं कि इस वाक़े की सारी जिम्मेदारी ईरान गवर्नमेंट, IRGC और ईरान इंटेलिजेंस पर आयद होती है। अफसोसनाक तौर पर इस अलमनाक वाक़े की मजम्मत की बजाय एक मखसूस सियासी जमात अपने मज़मूम अज़ाइम की खातिर इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश में हमेशा की तरह मसरूफ़ है। ईरान के इस फ़ज़ाई हमले की खिलाफ वर्जी के बाद मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वक्त का तकाजा है कि मुल्क की खातिर यकजां होकर इंतशार की सियासत के बजाय पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी को तरजीह दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात के अलॉटमेंट के बाद तीनों प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दे दिया है, जिसके बाद बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का काम जारी है। 2024 के इंतखाबात में 2070 टन कागज इस्तेमाल होने का तखमीना है, जिससे 260 मिलियन बैलेट पेपर्स छपवाए जा रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर आम इंतखाबात में 18,059 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में तैयारियों का सिलसिला जारी है। आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छपवाए जा रहे हैं। मज़ीद तफसील मालूम करते हैं फाहद जावेद से। जी फाहद, अपडेट कीजिएगा। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन के अंदर तैयारियों का अमल जारी है। बैलेट पेपर की छपाई का अमल शुरू हो गया। प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान की तीनों प्रेस के अंदर बैलेट पेपर की छपाई का अमल शुरू कर दिया गया है। 2024 के इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर छापने के लिए तकरीबन 2070 टन कागज़ दरकार होगा और 260 मिलियन के करीब बैलेट पेपर मजमूई तौर पर छापे जाएंगे। इस इंतखाबात के अंदर मजमूई तौर पर 18,060 के करीब उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत जारी की गई थी रिटर्निंग अफसरान और सूबाई इलेक्शन कमीशन को कि अब इंतखाबात के लिए क्योंकि बैलेट पेपर की छपाई का अमल शुरू हो गया, लिहाजा निशानात की तब्दीली का अमल रोक दिया जाए और किसी भी उम्मीदवार को नया इंतखाबी निशान अलाट ना किया जाए। अगर कहीं पर बहुत ज़रूरी है कोई इंतखाबी निशान अलाट करना, तो इस हवाले से पहले मरकज़ी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट को इस हवाले से आगाह किया जाए। इसके अलावा जो ज़िलेई रिटर्निंग अफसरान हैं, उन्होंने आज जो पोलिंग स्टेशन के हवाले से एतराज़ात और तजावीज़ है उस पर आज उनकी समाअत का आखिरी दिन है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि इंतखाबात से 15 दिन कबल ज़िलेई जो इलेक्शन कमीशन के दफातर होंगे वहाँ पर पोलिंग स्टेशन की हतमी लिस्टें अवेज़ा कर दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। इलेक्शन की आमद है, सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। रकबे के लिहाज से वतन अजीज का सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की नशिस्तें कितनी हैं और इनकी तकसीम कैसे बनती है, इस हवाले से आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। फिलहाल आपको कोयटा से आगाह करते चलें। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। सियासी पार्टियों की आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों में भी तेजी आ गई है। मज़ीद तफसील मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद से। जी इसरार। जी बिल्कुल, जैसे जैसे 8 फरवरी का दिन करीब आ रहा है, इसी तरह आम इंतखाबात की जो सरगर्मियाँ हैं इनमें तेज़ी आ गई है। बात करें सियासी पार्टियों की, वो ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते कर रहे हैं और उनको अपने हक में दस्तबरदार कराने की कोशिश कर रहे हैं।
गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाराज रहनुमा ताहिर महमूद ने भी बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस में शमूलियत कर ली है, जो कि इसकी हिमायत में आज़ाद उम्मीदवार रज़ा और रहमान भी दस्तबरदार हो चुके हैं। इसी तरह PB43 से नासिर कमरानी भी अमायू अजीज कुर्द के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। सियासी पार्टियों की बात करें तो सीट टू सीट एडजस्टमेंट और का सिलसिला भी जारी है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम BNP की हिमायत में, जबकि मजदूफा नेशनल अवामी पार्टी और ANP के दरमियान भी सीट टू सीट एडजस्टमेंट का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। जी शुक्रिया इसरार। साबिक जज जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त का मामला अदालत ने 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने कहा कि इस मरहले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की सदा काबिल कबूल नहीं है। अदालत ने सिर्फ शिकायत गुजारों को फ्रीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने, मौक़िफ़ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त में शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार देने की सदा की गई। हुक्मनामे के मुताबिक दूसरे फरीकों को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकला ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ वापस ले लिया। वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी है। वजारत दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम 6 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसके कन्वीनर FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं। बाकी अरकान में इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, DIG इस्लामाबाद पुलिस, PTA का एक नुमाइंदा और किसी भी दूसरे मुतल्लिका इदारे का नुमाइंदा शामिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम 3 ज़वाबित कार के तहत अपनी तहकीकात का आगाज़ करेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के काबिल एहतराम जज साहिबान के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों की शनाख्त का अमल किया जाएगा, जिसके बाद मुलज़िमों को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालतों में पेश किया जाएगा। इसके अलावा ये कमेटी मुस्तकबिल में इस तरह की गिनावनी सोशल मीडिया मुहिम के सद्देबाब के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी अपनी इब्तदाई रिपोर्ट 14 दिन के अंदर वजारत दाखिला को पेश करेगी। FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद मुश्तरका तहकीकाती टीम को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को POF की पैदावारी सलाहियत, मुसल्लह अफवाज की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए की जाने वाली काविशों और दिफाई मसनूआत की बरामद की सलाहियत के बारे में तफसील से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने POF में मुख्तलिफ अक़साम की दिफाई मसनूआत की तैयारी का मुशाहिदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ दिफाई मसनूआत की टेस्टिंग और ट्रायल्स के अमल को भी देखा। इस मौके पर खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने POF के अफसरों और अमले की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि POF पाकिस्तान की दिफाई सनत में कलीदी हैसियत रखता है। आर्मी चीफ ने कहा कि POF वाह जैसे मकामी सनती इदारों से ही कौमी तरक्की और खुद किफालत का हुसूल मुमकिन है। जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि हम खुद किफालत के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की दिफा को मजबूत बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल ज़रूरी है। इससे पहले POF वाह अहमद पर चेयरमैन POF ने आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फ़लस्तीन से मुतालिक ख़बरें लिए मैं हूँ आपके साथ हुमा मलिक। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला रुक नहीं सका। जनूबी ग़ज़ा के इलाकों खान यूनिस और रफ़ा में इसराइली हमलों में मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मगरबी किनारे में नाबलूस के करीब पनागुज़ीन कैंप के करीब इसराइली मिसाइल हमले में भी एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने खान यूनिस में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। हमले में नसर और अल अमल हस्पतालों की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। तलकरम पनागुज़ीन कैंप में इसराइली फोर्सेज और फ़लस्तीनियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। सेहूनी फ़ौज के बुलडोज़र्स ने इलाके में रिहायशी मकानात को मुनहदम कर दिया। सेहूनी रियासत के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 24,285 हो चुकी है, जबकि 61,154 अफराद ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ग़ज़ा में कहत की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ग़ज़ा में हर कोई भूखा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के फ़लस्तीन के कंट्री डायरेक्टर समर अब्दुल जबर कहते हैं कि ग़ज़ा में खुराक की फराहमी की सूरत हाल तबाहकुन है। ताहम इदारा ग़ज़ा के मकीनों तक हर मुमकिन तरीके से खुराक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अब तक तकरीबन 1.4 मिलियन लोगों तक खुराक पहुँचा चुका है।
عالمی ادارے نے کہا کہ جاری اسرائیلی حملوں کے دوران غزہ کے بے گھر باشندوں میں خوراک کی تقسیم کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ جنگ زدہ علاقے میں خوراک کی فراہمی کے لیے جلد انتظامات نہ کیے گئے تو غیر معمولی تباہی آئے گی اور ایک انسانی المیہ پیدا ہوگا۔ غزہ کی 1/4 آبادی فاقوں کا شکار ہو جائے گی۔ ادھر ڈیووس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ سربراہی اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کے زیر بحث آنے والے ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا۔ سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ غزہ میں تناؤ کم کرنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیربوک نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی آسمان سے نازل نہیں ہونی۔ غزہ کے مکینوں کے مصائب کم کرنے کے لیے فریقین اور عالمی برادری کو سنجیدگی سے کوششیں کرنا ہوں گی۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس نے ایکس پر غزہ میں تنازع لمبا عرصے تک جاری رہنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے طویل عرصے تک جاری رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ نے ممنوعہ اسلحے کے لائسنس کی تعداد کے حوالے سے متعلقہ حکام سے تفصیل طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سیکریٹری داخلہ، تمام صوبائی ہوم سیکریٹریز اور تمام اسپیکر جنرلز پولیس کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اسلحہ چوری کے مقدمے میں ملزم کی ضمانت کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ منشیات اور کلاشنکوف نے ملک کو تباہ کر دیا، ملک سے کلاشنکوف کلچر ختم کرنا ہوگا۔ عدالت نے اسلحے کی چوری میں نامزد ملزم کاشف کی 50,000 کے مچلوں کے عوض ضمانت منظور کر لی۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، اور وہ بھی گھوم گھما کر نہیں، مین جی ٹی روڈ پر بس 3, 5, 10 مرلہ اور 1 کنال کا پلاٹ لیا اور ہو گئی انٹرٹینمنٹ شروع۔ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں 11133987۔ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی، ہیپینس لیوز ہیئر۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی ہے۔ 16 جنوری تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,69,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز سے آنے والے 616 افغان شہریوں میں 179 مرد، 124 خواتین اور 313 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 38 گاڑیوں میں 68 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کو 130 روز ہو گئے ہیں۔ اب تک کی کارروائیوں میں 44,729 ملزمان بجلی چوری کرتے پکڑے گئے، جن میں سے 16,967 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق 44,278 کنیکشنز کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئیں، جن میں سے 41,834 درخواستیں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ بجلی چوروں کو اب تک 6,53,58,325 یونٹس چارج کیے گئے ہیں، جن کی مالیت 2,31,31,689 روپے ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 393 ملین ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ تمام ملزمان کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں، جبکہ 158 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 3,54,961 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 1,47,42,406 روپے ہے۔ مناوا میں کنیکشن کو 8,25,478 روپے، مناوا کے ہی علاقے میں ہی کنیکشن کو 7,31,31,150 روپے، جوہر ٹاؤن میں کنیکشن کو 2,50,000 روپے اور اسلام پورہ میں ایک کنیکشن کو 2 لاکھ روپے چارج کیے گئے ہیں۔ ملک کی معاشی حالت کی بہتری اور غیر قانونی طریقوں سے کی جانے والی تجارت کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر مربوط حکمت عملی بنائی گئی ہے، اور اس حوالے سے ستمبر 2023 سے حکومتی احکامات کے تحت ملک بھر میں اسمگلرز کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ 7 جنوری سے 15 جنوری کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں جاری انسداد اسمگلنگ آپریشنز میں برآمد کیے جانے والے اسمگل شدہ اشیاء میں ایرانی تیل، کھاد، سگریٹ، کپڑا اور چینی شامل ہیں۔ اس حوالے سے ملک بھر سے کل 10.88 میٹرک ٹن چینی، 550 سگریٹ کے اسٹاکس، 595 کپڑے کے تھان اور 1.12 ملین لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔
मुल्तान से 160 सिगरेट स्टॉक्स, 90 कपड़े के थान, जबकि कराची से 502 कपड़े के थान बरामद किए गए हैं। मुतल्लिका हुकूमती इदारों ने पेशावर से 0.45 मीट्रिक टन चीनी, 70 सिगरेट स्टॉक्स और 3 कपड़े के थान बरामद किए। कोयटा से 10.43 मीट्रिक टन चीनी और 320 सिगरेट स्टॉक्स बरामद किए गए हैं। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से स्मगलिंग के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में 9,249.41 मीट्रिक टन चीनी, 202 मीट्रिक टन आटा, 2661.01 मीट्रिक टन खाद, 2,05,176 सिगरेट स्टॉक्स, 19,034 कपड़े के थान और 2.37 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। निगरान हुकूमत, अस्करी क़यादत और मुतल्लिका हुकूमती इदारे मुल्क भर से स्मगलिंग जैसे नासूर से छुटकारे के लिए पुरअज़्म हैं। मारूफ अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार की जानिब से बढ़ती टारगेट किलिंग पर खतरे की घंटी बजा दी है। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस, इसराइल और शिमाली कोरिया के बाद अपने शहरियों को गैर मुल्की सरजमीन पर कत्ल करने में भारत भी शामिल हो गया है। 18 जून को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के उजरती कातलों ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया था। सिख रहनुमा को सिखों के हुकूक और आज़ाद खालिस्तान रियासत के क़याम के मुतालबे पर कत्ल किया गया। नजर के कत्ल के बाद मोदी सरकार ने अमेरिका में मुकीम सिख रहनुमा गुरु पतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का मंसूबा बनाया। जरीदे ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी खुफिया इदारों की बर वक्त कार्रवाई से भारतीय मंसूबा रंगे हाथों पकड़ा गया। इस वाक़े ने अमरीका भारत ताल्लुकात शदीद मुतासिर किए। सदर बाइडन ने भारतीय दावतनामा भी ठुकरा दिया। फॉरेन पॉलिसी कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात सच्चाई पर मबनी थे। सेक्रेटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को रियासती सरपरस्ती में किए जाने वाले मावराए अदालत कत्ल पर तहकीकाती टीम बनानी चाहिए। दूसरी जानिब मारूफ जरीदे द गार्डियन ने मोदी सरकार के सियासी मकासद के हुसूल के लिए ओछी साजिशों का भांडा फोड़ दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब की आड़ में मोदी अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहा है। इलेक्शन जीतने के लिए मोदी हिंदुस्तान के 80% हिंदू अवाम के मजहबी जज्बात का इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में मोदी के इक़्तिदार में आते ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम का मुंह बोलता सबूत राम मंदिर से मोदी सरकार की गहरी वाबस्तगी है। हिंदुस्तान की दीगर सियासी जमातों ने मोदी की सियासी चाल को बेनकाब करते हुए मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान के बड़े मंदिरों के सरबराहों और पंडितों ने भी राम मंदिर के इफ्तिताह को गैर मजहबी करार देते हुए शिरकत से इनकार कर दिया है। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह को हिंदुस्तान और दुनिया भर में अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और एहतजाज करने वाले हजारों मुसलमानों को भी शहीद कर दिया था। बलूचिस्तान के इलाके हन्ना औरक में मकामी कबायली अमायदीन और FC बलूचिस्तान नॉर्थ के माबैन जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे में IGFC बलूचिस्तान, कमिश्नर कोयटा समेत सिविल इंतजामिया, मकामी कबायली अमायदीन और इलाका मकीनों ने शिरकत की। जिरगे में इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, सैलाब के बाद बहाली के मुख्तलिफ मनसूबों और तरक्याती कामों पर बातचीत हुई। शरका ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया और अमन कायम करने में पाक फौज और FC के किरदार को सराहा। हन्ना औरक कमेटी मेंबरान ने बातचीत करते हुए कहा कि इस इलाके में सैलाब के बाद बहुत नुकसान हुआ था। FC बलूचिस्तान ने हमें इमदादी सरगर्मियों में बहुत मदद फराहम की। अमायदीन का कहना था कि पाक फौज, FC और सिविल इंतजामिया की कोशिशों से हमारे इलाके में कई तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। इन मनसूबों में हन्ना औरक और वली तंगी डैम रोड की तामीर, साफ पानी की फराहमी के मनसूबे, सेहत और तालीम के मुख्तलिफ मनसूबे शामिल हैं। इन तरक्याती बहाली के कामों पर काम चल रहा है और उनकी तकमील से मकामी लोगों की ज़िंदगी में आसानी आएगी और लोगों को मज़ीद सहूलियात मिलेंगी। जिरगे से IGFC नॉर्थ ने बातचीत करते हुए कहा कि पाक फौज और FC अमन व अमान कायम करने के साथ साथ मकामी लोगों के साथ हर शोबाए ज़िंदगी में अपना ताउन जारी रखेगी। वली तंगी डैम को जाने वाला रोड FC की जानिब से तामीर किया जा रहा है और इसका 80% काम मुकम्मल किया जा चुका है। जिरगे के शरका का कहना था कि अमन व अमान के क़याम में मकामी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इस जिरगे से सिविल और मिलिट्री ताउन मज़ीद बढ़ेगा। मटियारी कच्चे के इलाके में हज़ारों एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्जा माफिया के खिलाफ महकमा फॉरेस्ट का ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्जा माफिया से खाली करा ली गई है। ऑपरेशन जारी है और इस हवाले से देखते हैं इफ्तिखार आदिल की ये रिपोर्ट। जिला मटियारी के 14,000 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा खत्म कराने के लिए महकमा फॉरेस्ट के रेंज फॉरेस्ट अफसर मीर हसन शाह DFO हसनैन बलोच ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके 5,000 एकड़ काश्त की गई जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा खत्म करने का दावा किया है। इस दौरान इनका कहना था
कि 62 शख्सियात ने फायरिंग भी की, जिससे फारिस अफसरान और अमला बाल बाल बच गया। पुलिस की इजाफी नफरी तलब करके हालात पर काबू पा लिया गया। रेंज फारिस अफसर मीर हसन शाह ने PTV न्यूज को बताया कि जिले भर में कब्जा माफिया के खिलाफ आहानी हाथों से निपटा जाएगा। मजीद ऑपरेशन जारी रखते हुए मुकम्मल कब्जे खत्म कराए जाएंगे। 5,000 एकड़ से कब्जा खत्म किया है, इंशाल्लाह ऑपरेशन और करेगा। इफ्तिखार आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मटियारी। मलका कोहसार मरी के मुख्तलिफ जंगलात में आतिशज़दगी से सैकड़ों दरख्त मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स के अमले ने इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। चीका गली और दरिया गली के जंगलात में आग ने आनन फानन एक बड़े इलाके को लपेट में ले लिया और दरिया गली से मलहका जंगल में आग ने आबादी का रुख कर लिया था। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करके आबादी की तरफ जाने वाली आग पर काबू पाया। रास्ता मुश्किल होने की वजह से रेस्क्यू के अमले को सख्त तरीन दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आग लगने की वजह मौसम की खुश्क साली बताई जा रही है। और अब मौसम की सूरत हाल। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, आइंदा चंद रोज़ के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की जाती है। शदीद धुंध के बायस पंजाब के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से कम रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -7, कालाम -6, गिलगित -4, जबकि पारा चनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, वादिये कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी की लहर बरकरार है। साहिली और मैदानी इलाकों में धुंध का राज है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो चुके हैं। मौसम का हाल जानते हैं अजीज़ मरी से। जी बिल्कुल, वादी कोयटा में जो है खुश्क सर्दी बरकरार है, जबकि शुमाली जो इलाके जिनमें जो है कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, तोबा काकड़ी, तोबा चकसी, किला अब्दुल्ला, किला सैफला में जो है सर्दी की जो शदीद लहर है वो भी बरकरार बताई जा रही है। जबकि अगर हम साहिली इलाकों की बात करें तो जीवरी में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह गवादर में जो है दर्जा हरारत है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तुर्बत का जो दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि साहिली इलाकों में जो सुबह के वक्त जो है धुंध छाई रहती है। जबकि अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें जिनमें जो है डेरा राया, डेरा मुराद जमाली, बख्तियाराबाद, सिंधी में धुंध का राज है, जिसकी वजह से जो मामूलात ज़िंदगी है वो मुतासिर हो चुकी है। जबकि बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो जो है नुक्ता इनमा से जो है गिर चुका है। झीलें जो है वो बर्फ़ के पानी में जो है जम चुकी है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सर्दी की जो लहर है वो आइंदा भी बरकरार रहेगी। जी। और आज़ीन, जनूबी पंजाब इन दिनों शदीद धुंध की लपेट में है। रहीम यार खान जनूबी पंजाब के उन अजला में शामिल है जहाँ इन दिनों धुंध पड़ रही है, जिसकी वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद। रहीम खान समेत जनूबी पंजाब में इन दिनों धुंध का राज बरकरार है। जिला भर में मुसलसल जारी रहने वाली धुंध से हद निगाह इंतहाई कम हो जाने की वजह से शहरियों के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक मुसलसल कई दिनों से धुंध पड़ने और धूप न निकलने से गंदम की फसल मुतासर हो रही है। धुंध की वजह से हद निगाह 10 से 15 मीटर रह जाने की वजह से रहीम खान शहर समेत मोटरवे M5 पर ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रहीम खान समेत जनूबी पंजाब के शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सुबह और शाम के औकात में धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। रहीम खान में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रहीम खान। ये थी अब तक की मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल।